Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. Today we will discuss in strategic management and business policy. The topic is Quest quick environmental scanning technique. Today topic is very important for your exam point of view, so you have to prepare in very well manner of this topic. So let's start Quest analysis. यानी कि quick Quest stand for quick environmental scanning technique. In the strategic management, we have discussed number of tools and techniques to formulation of the strategy. While you are making plan for your business organization, you are making policy for your business organization, first of all, you have to scan the environment. ठीक है, environment, internal environment and external environment. According to that environment, you have to gather the information. According to that information, you identify to your situation in the market, in the business, and according to that purpose, you formulate strategy. Means to say, first of all, you have to identify yourself, where you are and where you want to go. This is the very basic concept of strategic management. While you are making any strategy or formulate any strategy, you have to clear where you are and what are your strength. Okay, what is your existing position in the organization, in the market, and about your competition. Everything you have to consider while we are talking about the environmental analysis. In the same manner, Quest analysis also help to you people to identify your information which is related to business practices. ठीक है, तो वो यहाँ पे हम अगेन बात कर रहे हैं किसकी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, कि भाई आप कोई भी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करना चाहते हो तो फिर आप क्या करोगे, पहले इंफॉर्मेशन गैदर करोगे. ठीक है, इंफॉर्मेशन गैदर करोगे और उसके बाद आप अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को आइडेंटिफाई कर लेते हो कि हाँ हमारी क्या पोजीशन है प्रेजेंट टाइप में, क्या रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, कहाँ कहाँ हमारी स्ट्रेंथ है. उसके बेसिस पे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक फ्रूटफुल स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करते हो. ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपनी पोजीशन पता होनी चाहिए, हमें अपनी कंडीशंस पता होना चाहिए कि हमारे कंडीशन क्या है. उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करते हैं. तो जो क्वेस्ट एनालिसिस है ये भी इसी तरीके से एक टूल और टेक्निक है. चलिए डिस्कस कर लेते हैं. क्वेस्ट इज एन acronym for quick environmental scanning technique and offer a broad and comprehensive first approximation to environmental trends and events that are critical to strategic decisions. Okay, this has defined Quest analysis given the concept Quest as a future research process designed to permit executive and planners in an organization to share their views about trends and events in future external environment that have critical implication for organization strategies and policies. It is a systematic, intensive and relatively inexpensive way to develop a shared understand of high priority issues and focus management attention quickly on strategic area for which more detailed planning and analysis would be beneficial. ठीक है, Quest stand for quick environmental scanning technique. यहाँ पे भी हम क्या बात कर रहे हैं, जैसे सपोज हम फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग करने जा रहे हैं. ठीक है, यानी कि फ्यूचर रिसर्च की बात की है. अ फ्यूचर रिसर्च प्रोसेस डिजाइन टू परमिट एग्जीक्यूटिव एंड प्लानर्स टू इन ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू शेयर देयर व्यूज अबाउट ट्रेंड. क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या कंडीशन चल रही है, किस तरीके से हम अपने आप को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा इनोवेटिव बना सकते हैं, क्या हमारी कंडीशन है. उन सब के बेसिस पे हम फ्यूचर के लिए डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं. तो जब हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो हमने क्या करा, एनवायरमेंट को प्रॉपर स्कैन कर लिया. ठीक है, यानी कि अगर हम कोई भी पॉलिसी लेके आते हैं या कुछ भी नया करते हैं तो उससे पहले हम मार्केट को एनालिसिस कर लेते हैं. जैसे अगर आप कस्टमर, ऐसे सपोज आज के टाइम में जो मार्केट है कस्टमर कॉन्शियस है, कस्टमर ओरिएंटेड है, तो उस केस में आप क्या करोगे, पहले कस्टमर के सारे व्यूज, कस्टमर से रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट को कंसीडर करते हुए सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर लोगे.
ठीक है। तो वो यहाँ पे हमने बात की एनवायरनमेंट से, यानी कि एनवायरनमेंट से आपने बहुत सारी चीज़ों को गैदर कर लिया जो आज के टाइम के अकॉर्डिंग चल रही हैं, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट यू आर प्रिपेयर यू आर प्लान टू योर सेल्फ। ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से करें, नो, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट कंडीशन यू आर प्रिपेयरिंग टू योर सेल्फ। ठीक है। सपोज यू वांट टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिटरमाइन व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्ट द कंज्यूमर as well as which kind of product required by the consumer, and third thing is what is the taste, what is the preference of the consumer. All these factors you have to consider, after that you can make a future decision. Okay, तो वो यहाँ पे हमने बात करी. Again, next one is, it is a systematic, intensive, relatively inexpensive way to develop, shared, understand high priority issues. ठीक है. The issues which are related to customer, the issues which are related to market, the issues which are related to competitors, all the things you are consider, you are examine, you are evaluate in this manner and find a best solution. तो वो क्या है, क्वेस्ट एनालिसिस है. ठीक है. अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम. इसके नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है, सॉरी एक मिनट रुकिए. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, स्टेप इम्प्लीमेंटिंग क्वेस्ट. तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं. रिव्यू करंट इन्वायरमेंटल कंडीशन. जब हम क्वेस्ट क्विक एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक को फॉलो करेंगे तो सबसे पहले हम अपनी करंट कंडीशंस को आइडेंटिफाई करेंगे, रिव्यू करेंगे. सेकंड है प्लेन एक्सप्लेन पर्पस एंड मैथोलॉजी, व्हाई यू आर डूइंग दिस एंड व्हाट मैथोलॉजी यू वुड यूज इन योर रिसर्च. ठीक है. सेकंड थिंग इज दिस. थर्ड वन इज रिव्यू फ्यूचर लिटरेचर एंड स्टिमुलेट थिंकिंग, यानी कि फ्यूचर से रिलेटेड जो भी रिव्यू है, लिटरेचर है, वो आप गैदर कर रहे हो और उसके बाद उसको स्टिमुलेट कर रहे हो. ठीक है. यानी कि अपना थिंकिंग प्रोसेस यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, प्रॉपरली स्टिमुलेट कर रहे हो. डिफाइन स्कोप एंड बाउंड्रीज फॉर डिस्कशन. कहाँ कहाँ स्कोप है, कौन कौन सी बाउंड्रीज के अंडर हम डिस्कशन कर सकते हैं, वो चीज़ इंक्लूडिंग जैसे शेयर होल्डर है, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं. आइडेंटिफाई की इश्यूज, जो भी हमने डिस्कस करे हैं. सिलेक्ट एग्रीड लिस्ट आप प्रिपेयर कर लोगे. असेस प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस. डेवलप अ क्रॉस इम्पैक्ट मैट्रिक्स. और लास्ट है एनालिसिस, CIM एंड डेवलप सिनेरियो. ठीक है. तो इस तरीके से ये क्या है, स्टेप्स हैं. हर स्टेप में हमने अलग अलग चीज को कंसीडर किया हुआ है. जैसे पहले आपने क्या करा, रिव्यू करा करंट एनवायरमेंटल कंडीशन को, फिर आपने अपना पर्पस क्लियर करा, मैथोलॉजी क्लियर करी, फिर आपने उससे रिलेटेड लिटरेचर कलेक्ट किया, मतलब यानी कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया आपने, और उस पर प्रॉपरली थिंकिंग एनालिसिस कर रहे हो. थिंकिंग प्रॉपरली अपने मेंटल प्रोसेस को क्या है एक्टिव करते हुए उसके बारे में सोच रहे हो. फिर आपने क्या करा, कहाँ कहाँ स्कोप है वो डिफाइन करा, बाउंड्रीज हैं. ठीक है. और फिर आइडेंटिफाई की इश्यूज, जो करंट के की इश्यूज हैं उनको आप डिस्कस कर रहे हो. तो इस तरीके से आपने क्या करा, करंट इश्यूज को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर लिया और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, उस पर एनालिसिस किया, इंटरप्रिटेशन कर लिया. ठीक है. तो वो यहाँ पे हमने बात करी किसकी, क्वेस्ट एनालिसिस की. ये थे स्टेप्स इम्प्लीमेंटिंग क्वेस्ट. Strategy make observation about major event and trend in the industry. Find issues and impact on boundaries, event and scanning. Issue and their implication. आप क्या कर रहे हो, उन सारे issues को फाइंड आउट कर रहे हो और उसके implications को properly स्टडी कर रहे हो कि किस तरीके से हम इन issues को सॉर्ट आउट कर सकते हैं या फिर इनके ऊपर काम करके अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं. जैसे सपोज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई क्रिटिकल कंडीशन चल रही है, कोई ऐसा इश्यूज आपने फाइंड आउट किया जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है. तो आप क्या करोगे, पहले उस पर काम करोगे, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे ताकि टाइम पे आप उन सारे इश्यूज को सॉर्ट आउट करो और उसका कोई भी इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे ना पड़े. ठीक है. तो जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे कोट सकते हैं कंपटीशन का, कि भाई कंपटीशन में आप राइवल्स को प्रॉपर्ली compete नहीं कर पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ योर वीकनेसेस, योर थ्रेट्स, जो भी फैक्टर्स है, पहले आप उन पे काम करोगे, उनको फॉलो कंप्लीट करने के लिए एक स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करोगे. तो वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेप्स इन इम्प्लीमेंटिंग क्वेस्ट एनालिसिस. ठीक है. तो ठीक है, आज का टॉपिक मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ.